Am I audible? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, you are audible. Okay. Let's begin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah. We are approaching session number 17 of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar biography of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We had discussed this earlier कि ये जो दावा का प्रोग्राम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था वो 3 स्टेजेस में था. एक था पहले सीक्रेटली दावा देना, सेकंड था पब्लिकली, एंड थर्ड था इस्लाम बियॉन्ड मक्का, थर्ड स्टेज. So now, alhamdulillah, he reached his third stage, which was calling unto Islam beyond Makkah. So in Shawwal, in the end of May or the beginning of June 619 CE of the 10th year of prophethood, अभी हम ये 10वें साल नबूवत में ही हैं. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam set out on foot at At-Taif, about 60 kilometers from Makkah, in the company of his freed slave Zayd bin Haris, inviting people to Islam. यानी कोई सवारी पे नहीं, बट ऑन फुट, पैदल ही वो निकल पड़े 60 किलोमीटर मक्का से दूर तैफ में, अपने किसके साथ, एक फ्रीड स्लेव जो उनके साथ थे जैद बिन हारिसा, उनके साथ वो चले गए तैफ के लोगों को इस्लाम की दावत देने. Contrary to his expectations, he got a terribly hostile reception. जैसा उन्होंने सोचा था उस तरीके का उनको इस्तकबाल नहीं मिला. बहुत ही ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव किस्म का उनको रिसेप्शन मिला, यानी वहां पर लोगों ने उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया. He approached the family of Umair, who was reckoned among the nobility of the town. However, to his disappointment, they turned a deaf ear to his message and used abusing language for the noble cause he had been striving for. 3 brothers from the chieftains of Thaqif, Abd Yalil, Mas'ud and Habib, sons of Amr bin Umair al-Thaqifi, met the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who invited them to embrace Islam and worship Allah. But they insolently mocked at him and refused his invitation. अभी ये जो 3 भाई थे, चीफ्टेंस के भाई थे, थकीफ इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, अब्द यलील, मसूद एंड हबीब, ये अमर बिन उमैर अल-थकीफी के बेटे थे. तो इन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था और ये अल्लाह की इबादत कर रहे थे, और ये भी इकट्ठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर ये तैफ के लोगों पे दावा कर रहे थे, इस्लाम के लिए इनवाइट कर रहे थे, मगर इनको जो है मजाक उड़ाया गया और रिजेक्ट कर दिया गया इनका इनविटेशन. He is tearing the drapes of the Kaaba. Is it true that Allah has sent you as a messenger? Said one of them. Has not Allah found someone else to entrust him with his message? Said the second. I swear by Allah that I will never speak to you. If you are really the messenger of Allah, then you are too important to be speaking to me. If you are lying against Allah, then I should never speak to you, said the third. यानी ये अलग अलग किस्म की बेकार किस्म के कलिमात और उनको टॉन्ट करना और उनको उनकी मजाक उड़ाना, वैसे बातें कर रहे हैं कि क्या ये सच है, आपके ऊपर नबूवत आई है, अल्लाह किसी और को भी ये तो दे सकते थे, और अलग अलग किस्म की बातें और मजाक करने लगे. वो कहते हैं कि आप सच बोल रहे हो, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो अल्लाह का नाम लेकर. मतलब वेरी derogatory comments, बहुत ही अजीब और गरीब और बहुत ही insulting and mocking type of comments वो देने लगे. Discovering that it was futile talking to them, Allah's messenger stood up and left them, saying, "Since you are behaving in this manner, please do not disclose my presence here." तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, उन्होंने वो उठे और वो चल पड़े. उन्होंने कहा कि आप लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हो तो ठीक है, कहते हैं आप मैं यहाँ पर आया था, इसको मेंशन भी मत करो किसी को. For 10 days he stayed there, delivering the message to the elite one after another, but all to no avail. अब एक ग्रुप को छोड़ के दूसरा, तीसरा, 10 दिन वो वहां पर रुके थे, ठहरे थे, और उन्होंने एलिट ग्रुप यानी जो वहां के चीफ्टेंस और रिच क्लास जो थे उन लोगों को दावा देना शुरू किए. In order to hasten the departure of the unwelcome visitor, the foolish ones among them and their servants chased him through the narrow lanes, pelted him with stones, and obliged him to flee from the city, pursued by a merciless crowd. अब इनका घटियापन की हद देखिए आप. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट फोर्सिंग देम, वो सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, बट उनमें से जो बहुत ही स्टूपिड या बेवकूफ किस्म के लोग थे, यानी जिनकी और भी ज्यादा कैरेक्टर में फ्लॉस थे, उन्होंने क्या किया, वो उनको चेस करने लगे, उनके पीछे भागने लगे और उनको पत्थर भी मारने लगे. यानी वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनको पत्थर मार के अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम अपनी गलियों से, अपनी सिटी से बाहर निकालें.
Blood flowed down both his legs and Zaid tried to shield him was wounded in the head. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून जो है वो जारी हो गया उनके सर से और उनके पैर तक पहुंच गया. ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो उनको क्या कहते हैं कवर अप या उनको प्रोटेक्ट शील्ड करने की कोशिश करते रहे और उनको भी सर में चोटें लगी थी. The crowd did not cease until they had chased him 2 or 3 miles across the sandy plains to the foot of the surrounding hills. उनको 2-3 माइल्स जो है क्राउड ने इसी तरीके से पत्थर मार के इंजर करके उनको सैंडी प्लेन्स उधर जो हिल्स थे ताइफ के उधर तक उन्हें पहुंचा दिया. There, tired and exhausted, he took refuge in one of the numerous fruit orchards and rested against the wall of the vineyard. उधर वो थक कर फिर एक जो जहाँ पर फ्रूट्स का बाग था उधर बैठ के वो थोड़ा रेस्ट ले और एक वॉल के साथ टेका लगा के बैठ गए. At a time when the whole world seemed to have turned against him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam turned to his Lord and started praying. अब जबकि पूरी दुनिया उनसे अगेंस्ट हो गई है, इस तरीके के जुल्म सितम ढा रही है, तो क्या उन्होंने किया? क्या वो कंप्लेन करे? क्या वो थक गए? क्या उन्होंने नाउम्मीद हुए? क्या डिप्रेशन में चले गए? नहीं, उन्होंने क्या किया? वो अपने रब से मुतवज्जे हुए और दुआ करने लगे. The touching words through which his oppressed soul expressed its distress are preserved to this day. He was tired and wounded, but confident of the help of the Lord. कितनी खूबसूरत स्टेटमेंट है ये. He was tired and wounded. वो थक गए थे, एग्जॉस्टेड थे, जख्मी थे, फिजिकल वुंड्स थे उनके ऊपर, फिर भी वो कॉन्फिडेंट थे. किसके ऊपर उनकी उम्मीद थी? अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऊपर उनकी उम्मीद थी. और उनके जो वर्ड्स है ना, अभी मैं वो इंशाल्लाह वो पैराग्राफ आपके सामने रीड आउट करूंगी. ये जो वर्ड्स हैं इसके अंदर आप उनकी कैफियत, उनकी सेंटिमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से गेज कर सकते हैं. इमेजिन समबडी जिससे लोग टोटली उसके अगेंस्ट हो गए हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, हालांकि वो बंदा जो कि एक बहुत अच्छी स्टेटस एंजॉय करने वाला इंसान है, who doesn't deserve to be treated like this. अल्हम्दुलिल्लाह, इतना पाक, इतना इनोसेंट, इतने अच्छे इखलाक और खुलूस वाला बंदा, और वो अल्लाह की बात कर रहा है, कोई अपने मफाद की बात नहीं कर रहा है, और उसके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है, फिजिकल इंजर और मेंटली टॉर्चर्ड और साइकोलॉजिकली इतना बुरी तरह से उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है. इसके बावजूद what he is counting on, he is only counting on his Rabb's mercy. वो अपने अल्लाह से कितनी अच्छी तवक्को रखते हैं, वो अपने अल्लाह से कितनी अच्छी उम्मीद रखते हैं और कितने अच्छे अल्फाजों में वो उनको याद करते हैं. ओ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, to you alone I complain of my weakness, my insufficient ability and my insignificance before the people. वो कह रहे हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल को कि आप ही से, सिर्फ आप ही से मैं कंप्लेन करता हूँ अपनी कमजोरी की. मेरी 1 minute, there is a mic open. Do you want to say something, Madiha? Okay. मेरी insufficient ability यानी अपनी ही कमी और अपनी ही disability को वो आया कर रहे हैं. And my insignificance before the people, यानी मैं लोगों के सामने कोई importance नहीं रखता, मेरी कोई जात नहीं, कोई औकात नहीं है. You are the most merciful of the mercifuls. You are the Lord of the helpless and the weak. O Lord of mine, into whose hands would you abandon me? Into the hands of an unsympathetic, distant relative who would angrily frown at me, or to the enemy who has been given control over my affairs? But if your wrath does not fall on me, there is nothing for me to worry about. अब वो अपनी जो सिचुएशन है उसको कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐ मेरे रब, तुमने मुझे किन के हाथों में छोड़ा? उनके हाथों में छोड़ा हुआ है जो कि जिनके दिल में कोई रहम नहीं है. ओके, और वो मुझ पे गुस्से से देखते हैं, मुझ पे लान तान करते हैं, मेरे अफेयर्स जो मेरे उसका कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है. कहते हैं लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं. इफ यू आर नॉट एंग्री ऑन मी, जब अल्लाह अगर नाराज नहीं है और अल्लाह का अजाब मुझ पे नहीं आता तो मुझे ये सब चीजों की परवाह नहीं है. योर पार्डन इज एम्पल इनफ फॉर मी. I seek protection in the light of your face which illuminates the darkness. सिर्फ अल्लाह ताला माफ कर दे. अल्लाह ताला कहते हैं ना, अपनी शरण में ले ले, अपनी प्रोटेक्शन में ले ले. That is enough for me. क्योंकि अल्लाह का जो वजह है, यानी अल्लाह का जो साथ है या अल्लाह का जो रास्ता है या अल्लाह का जो साथ है, उसके अंदर इतनी रोशनी है जो अंधेरों को दूर कर देती है और आपके मामलात को जो है वो उसको सेटल कर देती है, अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड को सेटल कर देती है, दुनिया की, आखिरत की. May it never be that I should incur your wrath or that you should be wrathful to me, and there is no power nor recourse but yours alone. यानी ऐसा कभी ना हो कि मैं अल्लाह ताला के गजब का बाइस बन जाऊं या अल्लाह को नाराज करूं, और कोई भी पावर नहीं है सिवाय अल्लाह के.
सिर्फ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये देखो कितनी कंफर्टिंग, कितना पॉजिटिव, कितना होपफुल और कितना ब्यूटीफुल अप्रोच है अल्लाह के साथ। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, डिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से उनको तोड़ा गया, उनकी हिम्मत को पस्त करने की कोशिश की, उनको इंजर करने की कोशिश की, उनकी मजाक उड़ाने की कोशिश की, यानी हर एंगल से आप देखें उनको ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन सुभान अल्लाह, वो क्या नहीं ब्रेक कर पाए, वो अल्लाह के लिए उनकी मोहब्बत ब्रेक नहीं कर पाए, वो अल्लाह पे उनकी उम्मीद नहीं तोड़ पाए, वो अल्लाह के ऊपर उनका भरोसा नहीं हिला पाए। ये है वो चीज जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, और ये है वो नुक्ता जो आपको आगे चलने की हिम्मत देता है। दुआ करें इंशाअल्लाह या रब, मे अल्लाह इंक्रीज दिस फीलिंग इन अस, दिस लव, दिस रगबत, ये लव, फियर, होप जो हमें अल्लाह का है ना, ये अल्लाह ताला हमारे दिल में डाल दे। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह कामयाबी यही है, यही एक नुक्ता है जो हमें इस पूरी, हम जो इस सीरा की एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसमें से हम कहते हैं ना पर्ल्स ले रहे हैं, हम लोग डीप डाइवर्स हैं, हम अनगिनत प्रेशियस ज्वेल्स ले रहे हैं। आप ये जो है ना, इसको बिल्कुल बोल्ड किस्म से अपने दिमाग और दिल में फिट कर लें कि ये वो चीज है जो हमें अपने अंदर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह डेवलप करनी है। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। All right, going forward. Seeking him in this helpless condition, Rabi'ah's two sons, wealthy Makkans, were moved on grounds of kinship and compassion and sent to him one of their Christian servants with tray of grapes. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam accepted the fruit with the blessed invocation. अब उनकी हालत ऐसे देखकर, मैं आपसे कह रही ना, हर किस्म के लोग होते हैं, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक अगर बहुत ईवल ग्रुप है तो उनके सारे लोग ही वो इक्वल ईवलनेस में होंगे। कुछ लोगों का दिल अच्छा भी निकल सकता है उसमें से। एवरीबडी इज अ बंडल ऑफ गुड एंड नेगेटिव क्वालिटीज, ठीक है। तो हमें जो है ना, लोगों से नफरत नहीं करनी है, हमें उनके ईवल एक्ट से नफरत करनी है, और कोशिश ये करनी है कि उनका वो ईवलनेस खत्म हो जाए। सो सुभान अल्लाह, इसमें भी, ये ग्रुप में भी इनकी कंडीशन देखकर, रबिया के दो बेटे थे जो वेल्दी मक्कन्स थे, ओके, रिच थे वो, तो उन्हें तरस आया, उन्हें बुरा लगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक क्रिश्चियन सर्वेंट से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ट्रे ऑफ अंगूर पहुंचाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक्सेप्ट किया और दुआ भी की। Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah. The Christian servant Adas was greatly impressed by these words and said, "These are words which people in this land do not generally use." अब आप सोचें, सुभान अल्लाह, वो नौकर जो था वो क्रिश्चियन नौकर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, एंड देन ही इज बिगिनिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह। उन्होंने बिस्मिल्लाह के कलिमात यूज किए। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के वर्ड्स वो क्रिश्चियन के कान के अंदर और उसके दिल के अंदर बैठ गए, और वो बहुत स्टर हो गई, उसकी फीलिंग्स हिल गया वो अंदर से। वो कहता है कि ये कलिमात तो यहाँ के लोग कभी यूज ही नहीं करते। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, व्हाट लैंड आर यू फ्रॉम एंड व्हाट इज योर रिलीजन। अब अपना मैं और एक चीज इसमें आपको, ये लेट मी कंप्लीट दिस देन आई विल टेल यू कि देखें वो किसको हिदायत देने आ रहे थे, किसको वो दावा कर रहे थे, और कौन हिदायत ले रहा है। आप कनेक्शन बना सकते हैं जो हम बार बार कहते हैं ना कि हिदाया इज फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल ओनली, विच मीन्स कि कई बार हम किसी को टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए हिदायत के दरवाजे अल्लाह ताला ने अभी तक खोले नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये नौकर ट्रे लेकर आ रहा है और इसका दिल में फीलिंग स्टर हो रही है, सुभान अल्लाह। सो यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दावा। आप कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, कहीं पर आप 1 घंटे का लेक्चर दे रहे हो और शायद लोगों के ऊपर वो असर ना करे, और आपने सिर्फ 1-2 सेकंड के कुछ अपनी दुआ के हिसाब से अपने कलिमात बोल दिए और वो बंदे को हिट कर जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से और आपका रिलीजन क्या है। तो उसका नाम अदास था। तो अदास ने रिप्लाई किया, मैं क्रिश्चियन हूँ बाय फेथ और मैं निनेवे से आता हूँ। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूछा, यू बिलोंग टू द सिटी ऑफ राइटियस यूनुस सन ऑफ मता। तो ये जो निनेवा है, ये जगह भी जो है नबियों की हिस्ट्री है, उसमें क्रिश्चियंस के लिए ये बहुत रिवर्ड प्लेस है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप यूनुस अलैहिस्सलाम के जो सन ऑफ मत्ता थे, उस सिटी को बिलोंग करते हैं। तो अदास आस्क्ड हिम एंशियंटली इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट जोना। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमार्क्ड, ही इज माय ब्रदर, ही वाज अ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सो एम आई। आपको पता है कि जो पिछली बुक्स थी, जो फर्स्ट टेस्टामेंट वगैरह थी, जिसके अंदर आसमानी किताब है, एंड इट इज वन ऑफ आवर पिलर्स ऑफ द फेथ दैट वी बिलीव इन दोज बुक्स, जो कि इंसानों ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया था। तो ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ कॉमन नेम्स, देयर आर लॉट ऑफ कॉमन प्रोफेट्स एंड स्टोरीज एंड थिंग्स लाइक दैट, जो बाइबल में भी आपको मिलती है। तो अदास जो है वो बहुत अभी
एक्साइटेड हो गया, तो वो उनसे पूछ रहा है कि क्या आपको जोना के बारे में पता है? कहते हाँ, वो भी एक नबी थे, मेरे भाई हैं वो भी। तो thereupon Adas paid homage to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and kissed his head, his hands and his feet. अब उसको इस चीज का एहसास हो गया कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये डेफिनेटली अल्लाह का रसूल है। तो वो अदास जो था, उनका माथा उसने चूमा, he kissed his forehead, उनके हाथ, उनके पैर। This is all बोसा ऑफ ताजिम, हाँ, so don't get me wrong। and जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जब रूल्स अहकामात आ गए तो सर्टन थिंग्स को उन्होंने कट कर दिया। तो इस एग्जाम्पल को लेके अभी हम लोग नहीं शुरू हो जाना है कि भाई अपने व्हाट इज अलाउड एंड परमिसेबल इज, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, ठीक है, उनको आप यू कैन हैव टू किस ऑन द फोरहेड, इट्स वन ऑफ द गुड आदाब्स। बट ये जो ऑफ गैर महरम के जो अब्बावाज एंड जो लीडर स्कॉलर्स होते हैं, उनके हाथ का बोसा या उनके सर का बोसा इज नॉट अलाउड। सो आई जस्ट थॉट आई मेक इट क्लियर, क्योंकि इस हदीस को लेकर फिर शुरू नहीं हो जाए कि वो आदस ने उनको किया था आउट ऑफ एहतराम तो हम भी करने शुरू हो जाएं। सो प्लीज इफ यू वांट आई विल सेंड यू द डिटेल्स इन द ग्रुप आल्सो। So when others came back to them, they said, what was that for? He said, oh my master, there is nothing on the earth better than this man. He has informed me about a matter that only a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would know. They angrily said, what is wrong with you, Adas? Do you leave your religion? Certainly your religion is better than his religion. अब जब वो वापस आया, आपको पता है जब भी किसी के अंदर ना वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, मसलन आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात से आपका दिल जो है वो खुल गया है, ओके, और आप अल्लाह की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो और आपका जो डाउट्स और जो ब्लॉकेजेस थे वो खत्म हो गए, देन यू आर नॉट द सेम पर्सन। ओके, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कुछ मक्कन्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे एंड वो सुनते थे, इफ यू रिमेंबर उकबा का जो किस्सा था, तो वो जब सुनते हैं और जब लौट कर वापस जाते हैं अपने लोगों में, तो उनकी हाव भाव, उनकी एक्सप्रेशंस, उनके एटीट्यूड में फर्क नजर आने लगता है। उसी तरीके से अदस के भी एक्सप्रेशंस को देखकर उसके मास्टर्स ने उनसे पूछा कि अब तुम्हारे साथ क्या मामला हो गया? तो वो कहते हैं कि ये आदमी, यानी कोई भी इस आदमी की तरह नहीं है, ये डेफिनेटली नबी है, रसूल है, बिकॉज उसने मुझे वो बातें बताई जो सिर्फ एक मैसेंजर को ही पता होती है। इस पर उसके जो मास्टर्स थे वो गुस्सा हो गए, कहते क्या हो गया अदस, तुम्हारा रिलीजन तुम छोड़ दोगे? ये तुम्हारा जो मजहब है ये उनके मजहब से बहुत ज्यादा बेहतर है। हार्ट ब्रोकन एंड डिप्रेस्ड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट आउट ऑन द वे बैक टू मक्का। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक उम्मीद थी कि ये लोग ताइफ के जो लोग हैं वो इस उनके मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसके बाद अच्छा वेलकम करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो वो गमजदा होके वापस मक्का लौट रहे हैं। When he reached Qarn al-Manazil, Allah the Almighty sent Jibreel alayhi salam together with the angel of mountains. अब अपने नबी की ये हालत देखकर जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे इतना भरोसा, इतनी मोहब्बत, इतनी क्लोजनेस रखते हैं, तो जैसे वो एक जगह पर पहुंचे कर्न अल मनाजिल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिब्रील अलैहि सलाम को भेजे और साथ में उनके भेजे फरिश्ता जो माउंटेन्स का इंचार्ज है। फिर जिब्रील अलैहि सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आप हुक्म करें, हम तैफ को जो है ये इन माउंटेन्स के बीच में क्रश कर देंगे, यानी वी विल पुट अज़ाब स्ट्रेटवेज टू बरी तैफ बिटवीन अल अक्शबैन, द माउंटेन्स ऑफ अबू कुबैस एंड कुआक्वेन। ये दो माउंटेन्स के बीच में तैफ लोकेटेड हैं। तो वो लेकर आए अपने फरिश्ते को अल्लाह के हुक्म से कि आप अगर हमको ऑर्डर दें, जस्ट लेट अस नो, हम पूरे इनको क्रश कर देंगे ये दोनों माउंटेन्स के बीच में। Al-Bukhari has recorded the details of this event with a chain from Urwa bin Az-Zubair that Aisha radiallahu anha narrated to him that she asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, have you ever experienced a worse day than Uhud? He answered, your tribes have troubled me a lot, and the worst trouble was the trouble on the day of Aqaba. Azra Said, आपका कैमरा बंद करें। When I presented myself to Ibn Abd Yalil bin Abd Qulayl, and he did not respond to my invitation, so I departed overwhelmed with excessive sorrow and proceeded on and could not relax till I found myself at Qan al-Thalib, where I lifted my head toward the sky to see a cloud shading me. Unexpectedly, I looked up and saw Jibreel alayhi salam in it. He called me saying, Allah has heard what your people said to you, and their reply to you. Allah Azza wa Jal has sent the angel of the mountains to you so that you may order him to do whatever you wish to these people. The angels of the mountain called upon me and greeted me and then said, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Order what you wish. If you like, I will let al-Akshabain fall on them. एक हदीस जो बुखारी में रिकॉर्डेड है जिसकी चेन उर्वा बिन ज़ुबैर से जाती है, जिसने आयशा रदियल्लाहु अन्हा से पूछा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि आपने उहूद से वर्स्ट कोई दिन एक्सपीरियंस किया? तो ये हदीस में इसी इंसिडेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मैं बड़ी उम्मीद से, बड़े होप और एक्सपेक्टेशन के साथ उनकी तरफ गया था, बट उन लोगों का जो तर्ज अमल रहा है वो बिल्कुल ऑपोजिट था, तो उसने मुझे बहुत गमजदा किया। कहते हैं फिर मैं रिलैक्स कर रहा था, वहां पर मैंने देखा कि क्लाउड शेड कर रहा है मुझे, मैंने सर उठा के ऊपर देखा तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम और साथ में माउंटेन्स का फरिश्ता था, और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अगर बोलो, ऑर्डर करो, तो हम पूरे तैफ को अल अशकबैन जो माउंटेन्स है उसके बीच में उनको क्रश कर देते हैं। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "No, I hope that Allah will let them beget children who will worship Allah alone and will worship none besides Him." आप देखें कितना जबरदस्त कैरेक्टर है उनका। वो एक सेकंड में चाहते तो उनकी चटनी बन जाती सारे तैफ वालों की, जिन्होंने उनके ऊपर ताना किया, लान तान किया, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। लेकिन उनके वर्ड्स क्या थे पता है? उनके वर्ड्स ये थे कि मुझे उम्मीद है कि इनके जो आगे, इनकी जो जनरेशन, इनकी जो औलादें होंगी वो अकीदा तौहीद पर होंगी इंशाल्लाह, वो अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी की भी नहीं। Allah's messenger was then refreshed and his heart was set at rest in the light of the invisible divine aid. He proceeded to Wadi Nakhla where he stayed for a few days. इसके बाद उनका जो दिल था उसके अंदर क्या कहते हैं, होप और लाइट ऑफ इनविजिबल डिवाइन, ये एक कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से एक हीलिंग सोल्यूशन उनको मिलता था, तो उनके अंदर फिर से उम्मीद जो है अच्छी जगाई गई एंड ही वाज रिफ्रेश्ड अगेन। अब देखें, अभी उन्होंने एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने वो सपोर्ट देखी, डोंट यू थिंक सो इट इज इनफ? यानी अब आप देखें, आप अगर कहीं कुछ काम करने के लिए जाते हैं, आप एक छोटी सी चीज लेने के लिए जमिया गए, वहां पर एक दो सेल्स पर्सन ने आपके साथ बुरा बर्ताव कर दिया, आपके साथ रूडली बात की और आपके साथ बदतमीजी की, आप उधर मैनेजर के पास कंप्लेन करने जा रहे हैं, सडनली आप देखेंगे कि वो ओनर ऑफ दैट जमिया आपके पास आता है, ओनर ऑफ द जमिया आके आपको कहता है आप मुझे ऑर्डर करो, मैं ये दोनों सेल्समैन को उठाकर टर्मिनेट कर दूंगा, मैं इन लोगों के ऊपर कॉम्पनसेशन डाल दूंगा कि ये आपको पे करें। मतलब वो आपको आके इस तरीके से अगर ओनर कंफर्ट करता है, आपकी कैफियत क्या होगी? आपका दिल सडनली गमजदा से एकदम खिल उठेगा, आपके अंदर एक नई उम्मीद जागेगी कि सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ये कि देयर इज समबडी ऑफ अ वेरी सुपीरियर अथॉरिटी, वो अपनी पावर बता रहे हैं कि उनके लिए तो ये बिल्कुल छोटा सा काम है, सो बहुत आसान है उनके लिए। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मदद ऐसे झट से आ रही है, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मर्सी, अपना रहम दिखा रहे हैं और अपनी गुड कैरेक्टर का एक नमूना पेश कर रहे हैं, एंड देन ही इज फॉरगिविंग देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रस्ट मी, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आपके साथ अगर कोई इस तरीके का कोई एक हल्का सा आईब्रो ऊंची करे तो आप उसको जिंदगी भर भूल नहीं पाते। यहाँ पर उनको पत्थरों से मारकर सर से खून जारी होकर पैरों तक पहुंच रहा है, ड्राइव आउट किया जा रहा है। आई मीन इट्स टू मच टू टेक, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन है ये। लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपनी अना को साइड में रखते हुए, आगे अच्छी उम्मीद करते हुए, ही फॉरगिव द एंटायर कम्युनिटी। उन्होंने तैफ के लोगों को फॉरगिवनेस एक अच्छा वो कर दिया, बिकॉज वरना 2 मिनट में तहस नहस हो गया होता। एंड उससे फिर वो बहुत ज्यादा रिफ्रेश हो गए, और कहाँ निकले? फिर वो निकले वदी नखला, जहां पर वो कुछ दिन, चंद दिन रुके। During his stay there, Allah sent him a company of jinns who listened to him reciting the noble Quran. ये जो सूरह जिन के अंदर भी ये किस्सा है ना, वादी नखला में वो कुछ दिन रुके थे, कुरान पढ़ते। अब आप देखिए, जहां पर भी जाते हैं, इनका दुआ, इनकी सलाह, इनकी इबादत, इनकी व्हाट डू यू कॉल इट, कुरान का कंटिन्यूस रेसिटेशन नहीं रुकता। सुभान अल्लाह। वी आर हियर टू कॉपी अवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बना के चलना है। तो आप ये सब चीजें नोट करते रहें कि वो क्या करते थे, कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते थे। तो ये वादी नखला में भी जब वो कुरान की कीरत कर रहे थे, सूरह 49 verses 29 to 31. And remember, when we sent towards you Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nafran, 3 to 10% of the jinns quietly listening to the Quran. When they stood in the presence thereof, they said, listen in silence. And when it was finished, they returned to their people as warners. They said, O our people, verily we have heard a book, this Quran, sent down after Moses, confirming what came before it. It guides to the truth and to the straight path, that is Islam. O our people, respond with obedience to Allah's caller, that is Allah's messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and believe in him.
that is, believe in that which Muhammad sallallahu alaihi wasallam has brought from Allah and follow him. He, Allah, will forgive you of your sins and will save you from a painful torment, that is hellfire. Surah 46 verses 29 to 31. सिंपल सा मैसेज था. ये जो आयतें थी उसमें लिखा था कि ये जिन जो है वो साइलेंटली सुन रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात कर रहे हैं और ये सुन रहे हैं, और वो सुन रहे हैं. देखें आप आदाब ऑफ द कुरान, लिसन इन साइलेंस. जिन है, जिन, ओके, ये जिन की जमात है. एंड हम लोग जो है वो ह्यूमंस हैं, वी आर इवन सपोज टू बी द सुपीरियर थिंग. बट कितनी दफा हम लोग जहां कुरान की कोई क़िरात चल रही है, कुछ चल रही है, हम अपनी बातें चालू रखते हैं. आदाब नोट करें इनके. लिसन इन साइलेंस. एंड व्हेन इट वाज फिनिश, जब खत्म हुआ तो फिर वो अपने लोगों के पास गए और उनको वार्न किया कि ये डेफिनेटली अल्लाह का कलाम है कुरान. मूसा अलैहिस्सलाम की बातें जो थी, जो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में थी, उसको कंफर्म कर रही है और हमें हिदायत दे रही है, हमें सीधा रास्ता बता रही है जो इस्लाम का है. तो हमारे लोग, आप जो है इस चीज को रिस्पॉन्ड करो. अल्लाह की कहते हैं ना, अल्लाह को फॉलो करो, नबी की अताअत करो. और नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये डेफिनेटली अल्लाह के रसूल हैं और हम उनमें ईमान लाते हैं, बिलीव करते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर आए हैं अल्लाह की तरफ से, जो कुरान है. और अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे, उम्मीद है हमें हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे और हमें जहन्नम के अजाब से बचा लेंगे. और सेम इंसिडेंट सूरह जिन में है, जो कि सूरह नंबर 72 वर्सेस 1 to 2. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it has been revealed to me that a group of 3 to 10 in number of jinns listen to this Quran. यानी 3 से 10 आदाद में थे ये जिन्नात. They said, verily we have heard a wonderful recitation of this Quran. It guides to the right path and we have believed therein, and we shall never join in worship anything with our Lord Allah Azza wa Jal. And then till ये जो वर्सेस हैं 1-2 से लेकर 15 वर्सेस तक के इसका मेंशन है. सेम सिनेरियो. यही कह रहे हैं कि ये जो साइलेंटली सुनो, इससे आप जो है नसीहत लो, इस पे आप यकीन करो, अल्लाह को फॉलो करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो करो, कुरान के जो अहकामात है उसको फॉलो करो, उस पे यकीन करो, और फिर अल्लाह ताला हमें जो है इंशाल्लाह माफ कर देंगे और हमें जहन्नम से निजात दिला देंगे इंशाल्लाह. अब देखिए कुरान कैसा असर करता है, कैसे दिलों पे असर करता है. हमारे को लैंग्वेज ही नहीं आती, हमें समझ ही नहीं आती, हमें फील ही नहीं आती, हमने कभी गौर फिक्र ही नहीं किया. हमारे लिए इट इज जस्ट समथिंग, कुछ फॉरेन लैंग्वेज में चल रहा है. वाई वी हैव नॉट पेड अटेंशन टू इट. हम लोगों ने इसके ऊपर क्यों नहीं मेहनत की. दुनिया जहान की सारी लैंग्वेजेस, सारी डिफिकल्ट स्किल्स हमने सीखी, हमने अरबी क्यों नहीं सीखी, कुरानिक अरबी क्यों नहीं सीखी. इट्स नेवर टू लेट. जल्द से जल्द इसके ऊपर मेहनत करनी शुरू करें. May Allah make it easy for us, Ya Rab. From the context of these verses and their interpretation, we can establish that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not aware of the presence of that group of jinns. अब आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था कि ये जिन की जमात जो है वो उनके कुरान की क़ीरत सुन रही है. It was only when Allah Azza wa Jal revealed these verses that he came to know of it. जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इसकी इंफॉर्मेशन दी, तब जाके उनको पता चला. The verses also confirm that it was the first time they had approached him. पहली बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका इत्तेफाक हुआ. However, the context of the different versions suggests that the jinns repeated their visits later on. इसके बाद वो बार-बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजिट किया करते थे. The presence of that company of jinns comes in the context of the divine support given to his messenger sallallahu alaihi wasallam and constitutes a promising sign of ultimate victory and success for the call of Islam. यानी ये भी एक बहुत बड़ी जमात है, ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक मखलूक है जो बहुत पॉपुलेटेड है, दे आर वेरी एक्टिव, हाई इन नंबर. आप देखिए, ये एक तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कामयाबी है कि उनका जो मैसेज है इंसानों के लिए, इसलिए कहते हैं ना कि रसूल कुरान ये पूरी आलमीन के लिए, फॉर ऑल क्रिएशंस है, इंक्लूडिंग जिन्स एंड जिन्नात, विच मीन्स कि इन्होंने एक्सेप्ट किया, इनकी एक बड़ी जमात मुसलमान हो गई, और वो एक देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए एक सक्सेसफुल विक्ट्री मानी जाती है. It provides a proof that no power, however mighty, could alter what is decided by Allah Azza wa Jal. यानी डेफिनेटली ये प्रूव कर रहा है कि कोई ताकत अल्लाह के आगे नहीं चल सकती और अल्लाह ताला के हाथ में है सारी कुव्वत. As per Surah number 46, verse number 32, and whosoever does not respond to Allah's caller, he cannot escape on earth, and there will be no awliya, protectors for him besides Allah from Allah's punishment. Those are in manifest error. यानी आप कितनी भी कोशिश कर लें
कि मैं इस वली अल्लाह, इस औलिया, ये शॉर्टकट, ये मुझे बचा देंगे, ये मेरी राहत कर देंगे, ये मेरे लिए शफात कर देंगे, कुछ नहीं, नथिंग एब्सोल्युटली। अगर आपने सही रास्ता नहीं पकड़ा, अगर आपने सही जगह पे अपना ईमान को नहीं रेज किया, तो आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। Another surah 72 verse number 12, and we think that we cannot escape from the punishment of Allah in the earth, nor can we escape from the punishment by flight. यानी आप सोच लें एक बात कि सबने मरना है, सबका एंड कहाँ पर होने वाला है, कहाँ पर सबकी रूहें किधर जाने वाली हैं, सबकी जान किसके हाथ में है। यानी आप कितने दिन जी लोगे, आप कितनी ताकत, कितना आपकी कुव्वत क्या है, हु आर यू, हु आर वी, हमारी क्या हैसियत, क्या औकात, हमारी क्या कुव्वत। वी आर एज गुड एज, आपने पानी का अपना ये बबल देखा है ना, बबल, उसकी क्या हैसियत है। ट्रस्ट मी, वी आर लाइक दिस, हम लोगों की कोई हैसियत है ही नहीं। ये जो हम इतना तकब्बुर, घमंड, अपनी ताकत, अपनी शोहरत, अपने पैसे, अपने हुस्न पे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली जीरो। देयर इज नथिंग इन अस। ऑनेस्टली हम पूरे इनसाइड आउट अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे डिपेंडेंट है और हमें उसी के पास लौटना है। तो क्यों ना हम ऐसे काम करें कि हम एक अच्छे अंजाम को पहुंचे, हम अल्लाह के सामने मिलने के लिए शर्मिंदा ना हो, हम दुनिया वालों के सामने रुसवा ना हो। क्योंकि जब आप अल्लाह से अपनी लॉ लगाते हो, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी आपके दर्जात बुलंद करते हैं, कब्र में भी आपको आसानी करते हैं और आखिरत में भी आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ओनली अकीदा तौहीद, ओके, अल्लाह, ओनली अल्लाह एंड नो वन एल्स, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आपने अकीदा तौहीद को अपना पक्का कर दिया तो आपको ये सारे डेंजर्स, दुनिया के फितना, दुनिया का अजाब, तकलीफें, मशाकिल, कब्र की हौलनाकियाँ एंड आखिरा की परेशानियाँ, सबसे निजात बिइज़्निल्लाह मिल जाती है। तो द ओनली शॉर्टकट इज अकीदा तौहीद, वर्क ऑन दैट। Given this support and auspicious start, the depression, grief, and sadness that used to overwhelm him since he was driven out of Atef disappeared, and he turned his face towards Makkah with fresh determination to resume his earlier plan to expose people to Islam and communicate his message in a great spirit of zeal and matchless enthusiasm. जिस तरीके का support मिला, अभी देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ से निकले, रिजेक्टेड, उधर एंजल जिब्रील आ गए अलैहिस्सलाम, एंजल ऑफ माउंटेन के साथ, वो एक सपोर्ट। उसके बाद वादी अल नखला में उनको जिन की जो जमात थी वो भी एक्सेप्ट करी इस्लाम, तो ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक नाउ। अभी उनके जो जख्म थे ना, उसके ऊपर ये जो है वो मरहम लग चुका था। ओके, सो क्या हो गया अभी, ही वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, ही वॉज वेरी पॉजिटिव, और फिर वो मक्का की तरफ दोबारा चल पड़े और अपना जो उनका प्रोजेक्ट और प्लान था कि दीन का दावा करना, वो कंटिन्यूस शुरू रखें। Zayd bin Harisa, his companion, addressing the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, said, "How can we dare step into Makkah after they, Quraysh, have exiled you?" The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam answered, "O Zayd, Allah Azza wa Jal will surely provide relief, and He will indeed support His religion and the Prophet sallallahu alaihi wasallam." अब Zayd bin Harisa थोड़े से घबरा रहे थे। He said कि जैसे कुरैश ने मक्का से आपको निकाला, जिस तरीके से उनका बर्ताव और जो सलूक उनका रहा है, तो आपको लगता है कि हमारे लिए सेफ है वापस दोबारा एंटर होना। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ैद, अल्लाह अज़्ज़ा व जल डेफिनेटली हमको राहत पहुंचाएंगे। क्यों ना पहुंचाएंगे, क्योंकि हम उनके रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने नबी की सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे। When he was a short distance from Makkah, he retired to the cave of Hira, whence he dispatched men from the Khuza'ah tribe to Al-Akhnas bin Shuraik seeking his protection. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा तो था, लेकिन वो अपने हद में जितनी उनकी कैपेसिटी थी वो स्टेप्स जरूर लेते थे। अब आप देखिए, हम लोग इस चीज को ही कंसेप्ट को समझना होता है कि हदीस के वर्ड्स क्या होते हैं, टाई योर कैमल एंड देन तवक्कुल। यानी अभी फॉर एग्जांपल मुझे पता है अल्लाह राज़िक है, अल्लाह विल प्रोवाइड मी फूड, तो मैं कोई मेहनत ना करूं, आटा ना गूंदूं, आटा लेकर ना आऊं जमिया से, पकाऊं नहीं और एक्सपेक्ट करूं कि मन सलमा मेरे मुंह में उतरेगा, ऐसा नहीं है।
आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा मैक्सिमम यूज करना है, फिर तवक्कल अल्लाह है। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स क्या थे कि अल्लाह विल डेफिनेटली प्रोवाइड रिलीफ, लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी जो उनके हाथ में, व्हाट ही कुड डू, व्हाट ही डिड, ही स्टेड इन द केव ऑफ हिरा, हिरा में, हिरा की गार है, हिरा में वो रुके, वहां से उन्होंने एक मैसेज भेजा खुजा ट्राइब के जो एक अल अखनास बिन शुरैक थे उनसे सीख प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था उनका सिस्टम ऐसा होता है कि जब कोई एक बंदा एग्जाइल यानी उसको जिला वतनी कर दिया जाता है या कोई मसले उनके चल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो उनके उनके जो नामी ग्रामी लोग होते हैं वो उनकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, यानी ये जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ये जो लोग हैं वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो दूसरा कोई उनको अटैक नहीं कर सकता। तो उन्होंने अल अखनास बिन शुरैक से प्रोटेक्शन की तलब की। द लेटर आंसर दैट ही वाज कुरैशिस एली एंड इन नो पोजीशन टू ऑफर प्रोटेक्शन, लेकिन उसने जो है रिजेक्ट कर दिया। अल अखनास बिन शुरैक ने कहा कि मैं कुरैश का सपोर्टर्स हूँ, तो वो मक्कन का सपोर्टर हूँ, मैं आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। ही dispatched the messenger to सुहेल बिन अमर बट टू नो अवेल ईदर, फिर उन्होंने मैसेज सुहेल बिन अमर को भेजा और उसने भी कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं किया। Al-Mutim bin Adi, a notable in Makkah, however, volunteered to respond to Prophet's appeal for shelter. इसी बीच मैंने आपसे कहा ना कि हर इवल लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अच्छा निकल आता है। उसी तरीके से अल-मुतीम बिन आदि जो थे वो भी एक नोटेबल मक्कन थे, उनका भी एक दबदबा था। उन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेल्टर और प्रोटेक्शन दूंगा। He asked his people to prepare themselves fully armed and then asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam to enter into the town and enter directly into the sacred masjid. अब अल-मुतीम बिन आदि ने क्या किया, अपने लोगों को तैयार किया, अपने आर्म्स एमिनेशंस तैयार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप एंटर करें और डायरेक्टली जो है मस्जिद अल हरम में चलें। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam observed a 2 rakah prayer and left for his house guarded by the heavily armed vigilant Mutim bin Adi and his sons until he reached his door. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद गए, मस्जिद अल हरम में 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर वो अपने घर की तरफ रवाना हुए। और मुतीम बिन आदि और उनके बेटे जो है बिल्कुल प्रोटेक्शन आर्म्स, यानी जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना कोई पॉलिटिशियन या ऐसे इंपॉर्टेंट पीपल आ रहे होते हैं तो जैसे इनको जेड सिक्योरिटी मिल रही होती है एंड सारा सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट लेटर अबू जहल, यानी वो इनकी प्रोटेक्शन के साथ फिर अपने घर के लिए रवाना हुए। It has been reported that later Abu Jahl, the arch enemy of Islam, asked Mutim if his behavior suggested protection or conversion. अब अबू जहल तो बहुत कट्टर दुश्मन ऑफ इस्लाम, उसने बिकॉज मुतीम वॉलंटियर फॉर द प्रोटेक्शन, उनसे पूछा कि ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ये क्या है, क्लियर करो हमको, सिर्फ प्रोटेक्शन देना है या तुम भी मुसलमान होने के मूड में हो। तो मुतीम ने उनको जवाब दिया कि नहीं, मैं सिर्फ उनको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। अबू जहल was relieved and said that he would give Muhammad sallallahu alaihi wasallam protection for his sake. तो वो अभी खुश हो गया कि भाई चलो ये सिर्फ प्रोटेक्शन की हद तक है और बाकी मुतीम और उसके बेटे या उसके जो अंडर लोग हैं वो मुसलमान नहीं होने वाले। Allah's messenger never forgot Mutim's favor. At the conclusion of the Battle of Badr, he said, if Mutim bin Adi were living and had asked me for the release of these rotten people, then I would have given them to him. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतीम की इस फेवर को हमेशा याद रखा और जब जंग बदर खत्म हुई तब उन्होंने एक कमेंट पास किया था कि अगर मुतीम बिन आदि जिंदा होते, तब तक कि शायद उनकी वफात हो गई थी, कहते हैं अगर वो मुझे कहते हैं कि ये लोगों को रिलीज कर, दिस रॉटन पीपल, इनको रिलीज कर दो गलीज लोगों को, तो मैं डेफिनेटली कर देता, यानी टू ऑनर मुतीम्स सपोर्ट, बिकॉज जिस वक्त सारे लोग रिजेक्ट कर रहे थे ही स्टूड अप, सो दैट इज व्हाई ही रिमेंबर्ड हिज फेवर। Islam being introduced to Arab tribes and individuals. In Dhul Qada'a, the 10th year of prophethood, again हम 10वें साल of नबूवत में ही हैं, that is July 619, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam returned to Makkah to resume his activities. The time for the pilgrimage to Makkah was approaching, so he hastened to introduce people, both tribes and individuals, to Islam and call upon them to embrace it, as was his practice since the 4th year of his prophethood. अभी ज़ुल क़ादा में 10वें साल ऑफ नबूवत में जुलाई 619 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस लौटे अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के लिए। ये जो वक्त था ये हज का वक्त था, तो लोग जो है वो क्या कहते हैं, लोग ट्राइब डिफरेंट आ रहे होते हैं एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना मैसेज जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप करे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, लाइक इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, तो लोग जो है आकर इस्लाम को कबूल करने की भी जल्दबाजी चलने शुरू हो जाती थी, हरकत में आ जाते थे। और ये 4th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड से ये सिलसिला चलता था कि जब हज का पिलग्रिमेज का सीजन होता था बहुत सारे लोग मक्का
हज उम्रा के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक्टिविटीज बढ़ा देते थे, और फिर बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के फोल्ड में आ रहे होते थे. On the authority of Az-Zuhri, the tribes that Islam was introduced to were Banu Amir bin Sasaha, Muharib bin Khasfa, Fazara, Ghassan, Mura, Hanifa, Sulaim, Abs, Banu Nasir, Banu Al-Buka, Kinda, Kalb, Al-Haris bin Ka'ab, Udra, and the people of Hadramaut. अब ये different कबीलों के नाम हैं. ये सारे लोग थे जिनको दीन इस्लाम के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था, और they however remained persistent and none of them responded positive. अब इतने सारे लोगों को दीन की दावत दी गई थी, लेकिन इसमें से किसी ने भी कबूल नहीं किया. Islam was not introduced to them in one single year, but rather repeatedly from the 4th year until the last season of pilgrimage. यानी चौथे साल ऑफ नबूवत से लेकर 10वें साल ऑफ नबूवत तक कॉन्स्टेंटली बार बार इनको इंट्रोड्यूस किया गया दीन इस्लाम. Before the migration to Medina, most of these were introduced to Islam during the Hajj season of the 10th year. तो before, अभी हम धीरे धीरे एक्चुअली हिजरत की तरफ पहुंच रहे हैं, मदीनन पीरियड इंशाल्लाह विल स्टार्ट. तो ये जो है कंटिन्यूसली फ्रॉम 4th ईयर अंटिल 10th ईयर उनको बार बार दावा किया जा रहा था, और दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली. इब्न शाह, अब इसमें हम लोग के लिए क्या है लेसन, ये है कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, बीइंग डिटरमाइंड, बीइंग कंसिस्टेंट, यानी एक बार कर दिया नहीं वो काम हो रहा, एक बार वो कर दिया, वो कोशिश की, 2 बार कोशिश की, फिर हिम्मत हार गए, तीसरी बार कोशिश की, फिर अपने हथियार डाल दिए. नहीं, जब तक के आपका टारगेट अचीव नहीं होता तब तक के कंटिन्यूसली करते जाना है. अब ये आपका दुआ का सिलसिला हो सकता है, ये आपका इस्तिखारा का सिलसिला हो सकता है, ये आपका किसी चीज के ऊपर, यानी आप कोई तिब्ब नबी को फॉलो कर रहे हैं और शिफा अपने अल्लाह से तलब करनी है, उसका सिलसिला हो सकता है. यानी जो ये मुसलसल वाला है ना, बीइंग स्टेडफास्ट, बीइंग कांस्टेंट, बीइंग कंसिस्टेंट, बीइंग परसिस्टेंट, ये एक क्वालिटी है. क्योंकि आपको मुझे नहीं पता कब हमें विक्ट्री अल्लाह ताला नसीब कराए, कब हमको उसमें कामयाबी मिले, लेकिन हमारा काम क्या है, कॉन्स्टेंटली करते जाना विदाउट लूजिंग होप. उसमें एक डिसिप्लिन होना है, उसमें एक आपका कहते हैं ना अंदर से एक डेडिकेशन होना है कि आप वो करते जाओ. इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह सूनर और लेटर यू विल सी दैट यू आर अचीविंग योर टारगेट. तो रोज के हिसाब से भी अगर हमने एक बेबी स्टेप लिया, दैट इज एन अचीवमेंट. Ibn Ishaq has mentioned some details about the presentation of Islam to them and their rejection of it. Here is the summary. Ibn Ishaq ने mention किया कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको प्रेजेंट किया और वो लोगों ने कैसे रिजेक्ट किया, उसकी समरी बताइए. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam visited a branch of Banu Kalb known as Banu Abdullah. He called them to Allah's message. He made a presentation to them in which he said, ओ बनु अब्दुल्ला. अब ये बनु का कल्ब जो है जिसे बनु अब्दुल्ला भी कहा जाता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैसे प्रेजेंट किया. हमारे लिए इसमें लेसन्स है, हाउ टू गो अबाउट गिविंग दावा एंड प्रीचिंग दीन टू Muslims and non-Muslims also. O Banu Abdullah, indeed Allah made your father's name a good one, yet they would not accept what he presented them with. He called on Banu Hanifa in their locale and presented himself before them, but none of the Arabs rejected him in more repulsive fashion than him. अभी जब ये बनु कल्ब अब्दुल्ला को जो उनकी जो ग्रुप है उनको एड्रेस कर रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं बनु अब्दुल्ला, अल्लाह मेड योर फादर्स नेम अ गुड वन. अच्छे से उनको प्लीज कर रहे हैं और फिर शुरू कर रहे हैं अपनी बात, लेकिन उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया. फिर वो बनु हनीफा को कह रहे हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, बट अरब्स जो है उनको रिजेक्ट करते गए, और इन्होंने और भी यानी क्या कहते हैं रिपल्सिव वे में, थोड़ा सा एग्रेसिव होके बहुत दूर हुए इस्लाम से और उसको रिजेक्ट किया. He addressed Bani Amir bin Sasa, calling them to Allah and presenting himself before them. One of them, called Bahira bin Firas, said, by Allah, I can take this young man from the Quraysh and consume all of the Arabs with him. Then he asked him, if we were to give you allegiance and Allah gives you victory over your opponents, will you succeed? Will we succeed you in rule? The Prophet Muhammad replied, the rule is up to Allah. He places it wherever he wills. यानी अब देखिए, ये जो एक बनी अमर बिन ससा था, उनके पास भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और उनको दावा देने लगे. तो वो एक शख्स बहीरा बिन फिरास था, उसने कहा कि बाय अल्लाह आई टेक दिस यंग मैन फ्रॉम कुरैश, यानी ये जो यंग मैन है इनको मैं कुरैश में से लेता हूँ, एंड कंज्यूम ऑल द अरब्स विद हिम, यानी उनको मैं ये जितने भी अरब्स के दूसरे जो क्लैन हैं उनके साथ जमा कर देता हूँ. देन ही आस्क्ड हिम, अगर हम आपसे बैत ले लें
तो क्या अल्लाह ताला आपको विक्ट्री देंगे आपके दुश्मनों के ऊपर? क्या आपको लगता है कि आप इनको रूल कर पाएंगे? इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई झूठे प्रोमिसेस नहीं दिए। उन्होंने नहीं कहा डेफिनेटली ही न्यू इट कि विक्ट्री तो आनी है, लेकिन उनका जवाब क्या था? द रूल इज अप टू अल्लाह। उन्होंने जो मेन ताकत या मेन डिसीजन मेकिंग या मेन क्रेडिट जो रहता है वो हमेशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल को डायरेक्ट करते थे। तो उन्होंने कहा वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसको जहां रखना चाहते हैं अपनी मर्जी से प्लेस करते हैं। ही डजंट टेक द ओनस इन हिज हैंड्स। The man commented, should we stretch out our necks for the Arabs for you? Then when Allah gives you victory, you would grant rulership to other than us. We have no need for your affairs. वो कहते हैं, अब आप देखिए इसके अंदर ना इनकी ये जो सवाल जवाब और रीजनिंग हो रही है, एक तो इन्होंने मैसेज एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरा इन्होंने उसके अंदर जो है ना रीजंस ढूंढने के इसमें इनका क्या फायदा है, ये पावर हंगरी है, ये किंगशिप हंगरी है। इनका कहना क्या है कि अगर हम अपनी गर्दनें आगे बढ़ा दें, ओके, और जब अल्लाह ताला तुमको कामयाबी विक्ट्री दे देंगे तो तुम जो है हम पे रूल करोगे, ओके, यू वुड ग्रांट रूलरशिप, और हम हमारे साथ तुम नहीं हो जाओगे, तुम जो है वो मक्कन्स के साथ ही रहोगे, कुरैश और मक्कन्स के साथ होगे, तो हमारा इसमें कोई जाती फायदा नहीं होने वाला। हालांकि वो मैटर को समझ नहीं रहे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा फॉर्मूला दिया था, अगर आपको रूल करना है, यू वांट पावर, यू वांट किंगशिप, द ओनली फॉर्मूला इज ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो टुकड़ों में या क्लैंस में या कम्युनिटी में बांट कर नहीं, एक एक उम्मा बना के चलना है एज अ मुस्लिम नेशन। लेकिन ये लोग जो है इनके दिलों में जो बोलते ना डिस्क्रिमिनेशन या डिस्पैरिटी इतनी होती थी कि ये हर एंगल में अपने लोग, अपनी कम्युनिटी, हमारा कुंबा, हमारे कबीला, इसी के पीछे रहते थे। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि हमको तो कुछ नहीं मिलना है, तुम तो मक्कन को बिलोंग करते हो, तो तुम तो मक्कन को हमारे ऊपर हावी कर दोगे। When Banu Amir returned to their area, यानी कुरैश को हम पे हावी कर दो, not exactly Makkan but Quraysh. So when Banu Amir returned to their area, they narrated the story to an elderly man who had remained behind because he was too old. A young man of Quraysh of Bani Abdul Muttalib, claiming that he is a prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contacted us, asked for support and a place of refuge in our land. When Banu Amir returned to their area, they narrated the story to an elderly man. अब Banu Amir जब अपने एरिया में आए तो उन्होंने एक अपने बुजुर्ग को पूरा किस्सा सुनाया। A young man of Quraysh of Bani Abdul Muttalib, claiming that he is the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contacted us, asked for support and a place of refuge in our land. जैसे उन्होंने बताया कि एक यंग आदमी कुरैश में कबीले बनी अब्दुल मुतलिब से हैं, वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि वो नबी है, वो हमको कांटेक्ट किए, हमसे सपोर्ट मांगे और हमसे कहा कि उनको रिफ्यूज चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। जो वो बुजुर्ग आदमी था उसने अपना हाथ जो है अपने हेड पे रखा और कहा कि ही इज रियली इस्माइलाइट, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है और वो सच्चे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाउ डिड इट हैपन दैट यू मिसजज्ड हिज वर्ड्स? यानी आप देखिए, जो ओल्ड लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके अंदर एक अलग, नॉट ऑल बट चंद मैं कहूंगी, एक अलग किस्म की एक्सपर्टीज, विजडम, हिकमत, बसीरत होती है। ये लोगों ने उनकी बातों को बिल्कुल गेज नहीं किया और समझ नहीं पाए और रिजेक्ट कर गए। लेकिन जैसे ही ये बुजुर्ग के पास आकर बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, उन्होंने कहा ये सच्चे नबी हैं, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। कहते तुम लोग इनकी बातों को क्यों नहीं समझ पाए? The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was not disappointed at all. He persisted in his mission for which he had been commissioned to strive despite all odds. He did not confine his efforts to the tribes, but also establish contacts with individuals from some of whom he was able to receive a favorable response. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर भी डिसअपॉइंट नहीं हुए, क्योंकि तकरीबन 6 साल इतने लोगों के साथ बार बार सेम मैसेज, ही इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक कबीलों को या ग्रुप्स को नहीं कांटेक्ट किया, उन्होंने इंडिविजुअल्स को भी कांटेक्ट किया, जिससे उनको पॉजिटिव और फेवरेबल रिस्पांस मिला। मोरओवर, later in the same reason, some of them did believe in his prophethood and entered the fold of Islam. ऐसा नहीं था कि सारे लोग उन्होंने रिजेक्ट किया या उन्होंने अनसुनी कर दी, लेकिन कुछ लोग इस्लाम में दाखिल भी हुए। अभी इसमें ना लिस्ट है आगे, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद दैट टुमारो बिकॉज ऑलरेडी 3 बज गया है, लेकिन ये लिस्ट है और उनके बारे में फिर उनकी छोटी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है कि उनके साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई थी। तो वो लिस्ट इंशाल्लाह हम लोग जो अर्ली रिवर्ट्स में आती है अगेन, वो हम लोग इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग वी हैव टू डिस्कस? ओपन फोरम, कोई कुछ ऐड करना चाहता है? This is 17. Okay, there is nothing you want to add?
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।